ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 5, entitled as Narada's Instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva, and the text number 14. ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृश्यस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर् लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names and results to agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place. Purport. Shri Vyasadeva is the editor of all descriptions of Vedic literatures, and thus he has described transcendental realizations in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic power, and devotional service. Besides that, in his various Puranas, he has recommended the worship of so many demigods in different forms and names. The result is that people in general are puzzled how to fix their minds in the service of the Lord. They are always disturbed about finding the real path of self-realization. Srila Narada Dev is stressing this particular defect in the Vedic literatures compiled by Vyasadeva, and thus he is trying to emphasize describing everything in relation with the Supreme Lord and no one else. In fact, there is nothing existent except the Lord. The Lord is manifested in different expansions. He is the root of the complete tree. He is the stomach of the complete body. Pouring water on the root is the right process to water the tree, as much as feeding the stomach supplies energy to all parts of the body. Therefore, Srila Vyasadeva should not have compiled any Puranas other than the Bhagavata Purana, because a slight deviation from that may create havoc for self-realization. If a slight deviation can create such havoc, then what to speak of deliberate expansion of the ideas separate from the absolute truth, personality of Godhead? The most defective part of worshipping demigods is that it creates a definite conception of pantheism, ending disastrously in many religious sects, detrimental to the progress of the principle of Bhagavatam, which alone can give the accurate direction for self-realization in eternal relation with the personality of Godhead by devotional service and transcendental love. The example of the boat disturbed by whirling wind is suitable in this respect. The diverted mind of the pantheist can never reach the perfection of self-realization, but due to the disturbed condition of the selection of object. हरे कृष्ण। सब सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो यहाँ पे बहुत वंडरफुली श्री नारद मुनि एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के बारे में हमें बता रहे हैं, और वो एस्पेक्ट, वो घटक जो हमारे जीवन का है वो है एजिटेटेड माइंड। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, अर्जुन भगवद गीता में बोलते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो ये श्लोका में बताया जाता है कि मन किस तरीके का भयावह सेंस ऑर्गन हमें दिया गया है इस भौतिक जगत में। तो विशेषता अर्जुन मन के 4 जो स्वभाव है इसके बारे में ये श्लोका में बोलते हैं। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथे बलवत दृढ़म।
तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव दुष्करम। भगवान मेरा जो मन है वो चंचल है, वो दृढ़ है, वो प्रमाथ लाता है और उसके अंदर वो बलवत बहुत ज्यादा शक्ति भी है। इसके वजह से ही मैं ये पूरे ब्रह्मांड में चलने वाला जो वायु है उसे मैं रोक सकता हूं, परंतु मैं अपने मन को नहीं रोक सकता हूं। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन जो व्यक्ति अपने एकाग्रता के लिए जाना जाता है, जो व्यक्ति एक पेड़ के टहनी के ऊपर जो पंछी की मूर्ति लगाई हुई है या वो पंछी का एक लकड़ी का डायरोमा टाइप लगाया है, उसकी आंख वो व्यक्ति भेद सकता है। जब सुभद्रा द्रौपदी माई का स्वयंवर करने के लिए गए थे, तब यही अर्जुन थे जिन्होंने ऊपर लगाए हुए लकड़ी के मछली को नीचे देख के, तालाब में देख के उसकी आंख भेदी हुई थी। सोचिए उनका कंसंट्रेशन पावर कितना रहेगा। वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा मन चंचल है जिसको मैं रोक नहीं सकता। तो हम जैसे व्यक्तियों का क्या ही कहना है ना। हम किस खेत की मूली, गाजर, बीटरूट है करके, बराबर है। तो पहले तो ये जो 5 गुण है मन के, उसके बारे में देखते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे जब मन के 4 गुणों के बारे में बोल रहे हैं, वो इस मन को एक बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्जुन बोल रहे हैं चंचल ही मन कृष्णा, मेरा मन जो है बड़ा चंचल है। तो ठीक है ना, चंचल है तो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहेगा। वो तो बच्चे भी घूमते हैं, लोगों को पसंद भी आता है। कोई चंचल बच्चा रहता है, इधर से उधर इधर से उधर अगर वो चलता रहता है तो पीपल लाइक इट, बिकॉज वो बहुत सारे कार्य करता है, एंटरटेनमेंट करने का काम करता है, स्पेशली बच्चा। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें चंचल हुआ? तो बोलते नहीं, चंचल मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर हमें कोई भक्ति करनी है, साधना करनी है, सेवा करनी है, कोई काम भी करना है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन, एकाग्रता चाहिए। और चंचल मन कभी एकाग्र नहीं होता है। बोलते चलो ठीक है, तो चंचल है तो उसको एक जगह पे बिठाओ, उसको ट्रेन करो, उसकी वजह से हो जाएगा। बोलते नहीं, चंचल है, बच्चे की तरह है, लेकिन बच्चा चंचल होता है तो चलता है, लेकिन वो चंचल बच्चा अगर प्रमाथ लाता है, प्रमाथ मतलब क्या, वो डिस्ट्रक्टिव है बच्चा, कि जाएगा लॉकर खोलेगा, लॉकर में से सारी चीजें निकालेगा, कागज देखेगा तो फाड़ देगा, ठीक है, उसको रोकने का काम करेगा, करते हैं अगर हम, तो जोर जोर से चिल्लाना चालू करता है। ऐसा बच्चा क्या है, वो चंचल है लेकिन वो प्यारा नहीं है, वो सरदर्द है, बराबर है ना। तो प्रमाथ अगर वो बच्चा लाता है, तो मेरा मन भी वैसा है कि चंचल है, चलो ठीक है कि थोड़ा बहुत उसको साधना कर के मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रमाथ लाता है भगवान। भगवान बोल के प्रमाथ लाता है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको डांटो, फटकारो उसको, थोड़ा एक जगह पे बिठा, उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे का जो लक्षण है वो क्या बताते हैं मन का, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथे बलवान। भगवान आप हमारे में अपने मन के साथ ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती एक जगह पे बिठा दिया, बांध दिया दामोदर लीला की तरह और वो शांत हो गया करके, बिल्कुल भी नहीं। बलवत, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो मानता नहीं है, बैठे बोले तो भी बैठता नहीं है। बोलते देखो जबरदस्ती करो, इधर उधर के ये करके, सब कुछ भी करके, अगर मैं बलवत दृष्टि से उसको कंट्रोल भी करने की कोशिश करूंगा तो भी उसका चौथा लक्षण है दृढ़म। उसको हजारों सालों तक अगर मैं बांध के भी रखता हूं तो भी उसके अंदर इतना डिटर्मिनेशन है, इतना दृढ़ है कि जैसे ही 1000 साल के बाद भी वो रस्सी खोल दोगे, वो वापस क्या करेगा, चंचल प्रमाथ, वो मेरे जीवन में लाएगा। ये मेरा मन है भगवान, ऐसे मन के प्रति मैं क्या करूं? फिर उसके बाद भगवान बोलते अभ्यास है न तो कौनते, ये देखो मन तो ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। इतना ही भगवान बोल देते। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और नारद मुनि विशेषता क्या बोल रहे हैं कि आपने जो इतने भी सारे डिस्क्रिप्शन दिए उसमें विशेष क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। विशेषता लोग काम के प्रति बड़े आकर्षित होने वाले हैं और इसमें भगवान का एस्पेक्ट बहुत कम आ रहा है। तो ऑलरेडी
भौतिक जगत में रहने वाले जितने भी व्यक्तिगण हैं उनका मन एजिटेटेड है। आप उसमें से उनको काम प्रवृत्ति, अपने काम पूर्ण करने के लिए जो प्रवृत्त कर रहे हैं उसकी वजह से और उनका मन क्या होगा, एजिटेट होगा। एक बार एक शॉपिंग मॉल में उन लोगों ने एक एक्सरसाइज किया। साबुन लाए और साबुन की बहुत सारी वैरायटी रखी, 23-25 ऐसा कुछ तो वैरायटीज उन्होंने रखा, और देखा अभी लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो लोग आते थे, साबुन देखते थे, हर एक साबुन देखते जाते थे, प्राइस देखते थे, फ्लेवर्स देखते थे, कंपनी देखते थे, ब्रांड देखते थे, और 1 या 2 महीनों के बाद उन्होंने इतना वैरायटी रखने के बाद देखा कि कितना सेल होता है, इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था वो। फिर दूसरे महीने के बाद उन्होंने और एक एक्सरसाइज की, वैरायटी में केवल 5 से 6 साबुन रखे 2 महीने तक, और उसके बाद उस साबुन का सेल्स देखा। शॉकिंग रिजल्ट ऐसा था, जब 5 या 6 साबुन थे तब सेल्स ज्यादा हुई, और जब 25-30 का वैरायटी था सेल्स कम थे। क्यों? कंफ्यूजन। वैरायटी एड स्पाइस टू द लाइफ। विविधता से जीवन हमारा सुंदर होता है, परंतु उस विविधता को, उस वेरिएटेडनेस को, उस वैरायटी को किस तरीके से हमारे जीवन में लाना है, उसका अगर विवेक बुद्धि व्यक्ति के पास नहीं है तो वही वैरायटी हमारे जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो वैरायटी हमारे जीवन में बहुत हो सकती है। बिड बैग्स, कितनी सारी बिड बैग्स है, लाल लू, पीली लू, काली लू, नीली लू, एम्ब्रॉयडरी वाली लू, आरी वाली लू, डायमंड्स वाली लू, या केवल पेंटिंग वाली लू। फिर उसके बाद काउंटिंग बीड्स, भक्तों का यहाँ से शुरुआत होता है ना। काउंटिंग बीड्स सादे वाले हैं, ब्राउन वाले हैं, कलर वाले हैं, कलर के 4-4 ग्रुप वाले हैं, अलग अलग कलर वाले भी है, बड़े हैं, छोटे हैं, डिजाइन वाले हैं। हाउ मेनी बीड्स शुड आई टेक, राइट? तो दैट वैरायटी क्रिएट्स अ हैवॉक इन आवर लाइफ। इसीलिए फॉर अस द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, बिड बैग लो, कलर एक ही है। इवन यू नो ब्रह्मचारी ऑल्सो गेट सो मच कंफ्यूज्ड विद दैट। कलर एक ही लेना है क्या? सैफरन। बट सॉफ्ट कपड़ा है, स्टार्च वाला कपड़ा है, एक सिंगल इसका वाला है, क्या बोलते हैं, जिप वाला है, डबल जिप वाला है, पॉकेट वाला है, ठीक है। आगे जो काउंटिंग बीड्स लगाने के लिए, उसके लिए एक छोटा सा ये है, क्या बोलते, सेपरेट सा लगाया हुआ। तो कितना वैरायटी उसमें भी है, डार्क है, लाइट है, पेस्टल कलर है, ये है, वो है। माय गॉड, सीरियसली व्हेन आई वेंट टू वृंदावन एंड वी वर सर्चिंग इट आउट, फिर उसके बाद ऐसे देखो बहुत सारी वैरायटी वहां पे रखी हुई थी। तो मैंने बोला क्या करना है? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आंखें बंद करूंगा, ये लो, ये लो, ये लो, हो गया करके। तो मेनी टाइम्स वैरायटी एड्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन आवर लाइफ। तो इसीलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने जो भी भगवान से थोड़ा सेपरेट होके लोगों को विशेषता धर्म अर्थ काम मोक्ष दिया है, इसकी वजह से उनका एजिटेटेड माइंड और एजिटेट होने वाला है। और उसके लिए उदाहरण देते हैं श्री नारद मुनि कि जिस तरीके से नाव, अगर एंकर होता है, एंकर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? हुक। हुक तो इंग्लिश ही हो गया ना, वटेवर, ठीक है। वो एंकर जो रहता है, अगर वो आपने लगाया नहीं है या किसी रस्सी से आके बंदरगाह के ऊपर आके उस नाव को बांध के नहीं रखा है, तो वो नाव क्या होगी, जैसे हवा आएगी हवा के साथ हिलते डुलते वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो उसी तरीके से जब तक किसी व्यक्ति का मन भगवान के चरण कमलों के प्रति आप एंकर से बांध के नहीं रखते, सेवा रूपी एंकर से बांध के नहीं रखते, ये मन भौतिक जगत की जो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन रूपी हवा है, इससे ये मन हमेशा बहता रहेगा। इसलिए हमारा एंकर जो है भगवान के चरण कमलों पे से गाड़ के रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो लंगर बोलते हैं उसे, हिंदी में लंगर बोलते हैं।
ठीक है, मराठी में भी लंगर बोल। This is the representation of Arjuna's Ghodas. अर्जुन, का- हाँ, वो कृष्ण के हाथ में थे इसलिए उधर उधर जा नहीं रहे थे वो, बराबर है। तो सिमिलरली हमारा मन, हमारा अहंकार, हमारा चित्त, हमारी चेतना अगर वो कृष्ण के चरण कमलों के प्रति व्यक्ति लगा के रखता है तो इस भौतिक जगत में उसको ज्यादा कंफ्यूजन्स नहीं आएंगे, उसको ज्यादा एजिटेशंस नहीं आएंगे। विथ स्मॉल स्मॉल थिंग्स पीपल गोट सो एजिटेटेड, यू नो, लाइक ओ मैं गया था संडे फीस्ट में और वहां पे प्रभु जी देखे, मैंने हरे कृष्णा बोला परंतु प्रभु जी हरे कृष्णा नहीं बोले। आज के बाद मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, प्रभु जी मुझे भाव नहीं दे रहे। अरे प्रभु जी खाने में बिजी थी, सामने गुलाब जाम थे, तो कैसे प्रभु जी किसी को ध्यान देंगे? कभी तो उनके जीवन में सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ा आने दो, वो बिजी रहेंगे, वो कुछ कर रहा होगा कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन public becomes so sensitive na, well, even after coming to devotional service we become so hypocritic कि कोई हमें अगर ध्यान नहीं देता है तो we become so agitated कि नहीं ये तो व्यक्ति देखो कितना एरोगेंट है, मैंने हरे कृष्ण बोला तो भी हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, और सामने वाला अगर आपको दंडवत हाँ करके चले जाएंगे। what is this ना? So people are so sensitive even after coming to devotional service, अपने प्रति वो इतना sensitive, मुझे ऐसा कैसे बोला गया, लेकिन how much you are giving trouble, आपने वो कभी देखा हुआ है क्या? छोटे छोटे चीजों में आप कितना तकलीफ देते हैं, आपको कितना टॉलरेट करना पड़ता है भक्तों को, ये हमने कभी नहीं देखा। इसलिए बोलता है, if today we are able to chant Hare Krishna Mahamantra, that means some devotees tolerating you, that's why you are in devotional service. Until and unless devotee won't tolerate our shortcomings, it is not possible for us to continue devotional service. That is a compassion and the big heart and broad heartedness of a devotee. तो यहाँ पे व्यासदेव जी ने मेनली जितने भी सारे श्रील प्रभुपाद बता रहे स्क्रिप्चर्स लिखे, उसमें फ्रूटिव एक्टिविटी, स्पेकुलेटिव नॉलेज, मिस्टिक पावर, devotional service is also included because Srimad Bhagavatam is compiled by Vyasadeva. Let me tell you very firmly, इतने महीनों से मैं हिंदी भागवतम दे रहा हूँ, लेकिन हिंदी भागवतम देते वक्त मैं इतना अटक अटक के चलता हूँ कि शब्द नहीं आ रहे, जैसे ही इंग्लिश बीच में आता है मैं घड़े 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 चालू हो जाता हूँ। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं क्या करूँ? या आई नो कि हर कोई उसको समझ पाता है, परंतु वो ऐसा हिंदी का शब्द आता ही नहीं, मुझे वो पहले कंपाइल करना पड़ता है ना। मैं वो जनरली व्हेन मैं पहले स्टार्ट जब किया था तब मैं मराठी मीडियम से सीखा तो मेरा थॉट थिंकिंग मराठी था, प्रोजेक्शन इंग्लिश होता था, तो तकलीफ होती थी। आफ्टर कमिंग टू डिवोशनल सर्विस माय थिंकिंग इज इंग्लिश एंड प्रोजेक्शन इज इन हिंदी। तो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा वो घड़घड़ घड़घड़ फिर इंग्लिश में चालू हो जाता हूँ, तो मैं चालू ही हो जाता हूँ करके, अनफॉर्चुनेटली व्हाट टू डू। तो यहाँ पे विशेषता व्यासदेव जी ने जो वैदिक ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें 4 कैटेगरी श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्मकांड, ठीक है, कर्म और वो करने के बाद जो हमसे कांड हो जाते हैं, दैट इज कर्म कांड। बहुत बार हम बोलते हैं ना, दोस्तों दोस्तों में होता है, बहुत बार रील्स एंड शॉर्ट्स में भी आपने देखे थे, मैं तो गया था कर्म करने के लिए, होके कांड हो गया है, तो मैं क्या करूं, इसमें यही मेरा डेस्टिनी है। तो कर्म कांड, स्पेकुलेटिव नॉलेज में इसलिए ज्ञान योग में, मिस्टिक पावर, योगा, अष्ट सिद्धि नव विधि के दाता। ऑल द पीपल दे आर वेरी मच अवेयर, अष्ट सिद्धि, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, सिद्धि, कामावशायिता, all kind of these siddhis are there, and Hanumanji is the giver of that. Why Hanumanji will give this kind of siddhis to someone? कामावशायिता, किसी का मन कंट्रोल में करना, क्यों हनुमान जी देंगे वो आपको? अनिमा, लघिमा, क्या आपका, आप जितना चाहे उतना छोटा हो सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा हो सकते हैं,
वो अपने जीवन में भगवान रामचंद्र के सेवा में उसको उपयोग कर रहे थे, परंतु किसी को देंगे नहीं वो, क्योंकि पता है इस भौतिक जगत में किसी को वो दिया तो वो क्या करेगा, हैवॉक करेगा इस भौतिक जगत में। हाँ, सिंपल सी बात है ना। सोचो कोई एक व्यक्ति जो भक्त नहीं है, उसको अगर आपने कामावशयता दिया है कि दूसरों का मन कंट्रोल कर सकता है, सबसे पहले जाके वो अंबानी और अडानी जी का मन कंट्रोल करेगा कि जो आपका प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दो करके। और फिर उसके बाद क्या होगा, सुंदर स्त्रियों का मन कंट्रोल करेगा, स्त्री होगी तो पुरुषों का मन कंट्रोल करेंगी, और फिर अपने पूरे इंद्रिय तृप्ति में वो उसको इस्तेमाल करके नरक के दरवाजे खोल के रख देंगे। परंतु सब लोग अष्टसिद्धि के बारे में बोलते हैं, नवविधि के बारे में कौन बोलेंगे? व्हाट इज नवविधा देन? नवविधा भक्ति, that is most important part in Hanumanji's life. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण। तो हनुमान जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट या घटक कोई है तो वो ये नवविधा भक्ति है। अगर ये नवविधा भक्ति में कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है और वो अपना हृदय शुद्ध कर देता है तो उसके पास अष्ट सिद्धि रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो हनुमान जी की तरह भगवान रामचंद्र की सेवा में उसे इस्तेमाल करेगा। एंड देन डिवोशनल सर्विस आखिरी में। बिसाइड्स दिस श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट डेमीगॉड्स, पॉलीथीज्म या पैंथीज्म, कुछ नहीं, जिसको जो पसंद आता है वो उसकी सेवा करो। सब एक ही है, सब मार्ग एक ही तरफ जाते, सभी भगवान एक ही है। कहाँ पे लिखा है? मैंने लिखा है अहम संहिता में, मैंने खुद ने लिखा है अपने खुद के संहिता में। कोई मार्ग, कोई भी मार्ग, कोई मार्ग पकड़ो, सब एक जगह पे जाते हैं। हाँ जी बराबर ठीक है, मुंबई से मैं दादर से डेक्कन क्वीन पकड़ूंगा तो दिल्ली चला जाऊंगा क्या? जाऊंगा मैं दिल्ली? नहीं, पुणे जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पुणे में उतरना पड़ेगा आपको। तो दिस इज अ मोस्ट काइंड ऑफ अ मेंटल फिलोसफी व्हेन पीपल सेज कि हर एक भगवान एक ही है, सारे भगवान सेम ही है, किसी की भी वर्शिप करो, सब एक ही है, एक ही जगह पे जाने हैं करके। नहीं जा सकते आप एक ही जगह पे। तो कैथे पैसिफिक पकड़ के हांगकांग का मैंने ये पकड़ा फ्लाइट और पहुंचना था मुझे न्यूयॉर्क, जाएगा क्या व्यक्ति? कभी नहीं जाएगा अपने जीवन में। तो दिस काइंड ऑफ मेंटल स्पेकुलेशंस जो होते हैं ना, वो लोग हमेशा क्रिएट करते रहते। नहीं, इवन इफ आप भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु की भी पूजा करोगे तो भी डेस्टिनेशन अलग अलग है। कृष्ण की भी पूजा करोगे तो उसमें भी 3 डेस्टिनेशन है, गोलोक वृंदावन, मथुरा एंड द्वारका धाम। तो इट्स नॉट ऑलवेज एवरीथिंग, कोई भी मिसल पाव, वड़ा पाव, भेड़ पाव खाओ आप और जाओगे, नहीं सब कुछ एक ही जगह पे जाके मिक्स होने वाला है करके। ऐसे नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी पेट के अंदर सब कुछ। तो दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ ना मेंटली स्पेकुलेटेड फिलोसफी। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वही हमें बता रहे, स्पेक्युलेटिव नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। Nobody knows anything about Lord and the devotional service, but अपना मैं खुद फॉलो कर रहा हूं ना, तो उसको सबको समाहित करके कैसे मैं ही श्रेष्ठ हूं ये दिखाने की लोगों को बहुत इच्छा होती है। अरे कुछ नहीं, ये करो, इसकी वर्शिप करो, वहां पे जाओ, गणपति पूजो वहीं पे जाएंगे, सरस्वती पूजो वहीं पे जाएंगे, काली पूजो वहीं पे जाएंगे, विट्ठल पूजो वहीं, अपनी माँ बाप की पूजा करो वहीं पे जाओगे। So all this kind of speculative things, they are, भारत में हर एक अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझता है, बहुत बड़ा फिलोसोफर समझता है, और मैं जो फॉलो करता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, ये उसको लगता है। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन भारत के लोग अपने आप को बहुत बड़े फिलोसोफर समझते हैं। हर एक के हाथ में दिया तो भगवद गीता के 1.5 अरब ऐसे संस्करण आएंगे आपके हाथ में, मेरे हिसाब से भगवद गीता, उसके हिसाब से एक अमेज़न पे बहुत फेमस व्यक्ति है, वो सीता, कुंती, कर्ण ऐसे पुस्तक लिखता है। बोलता है सीता माता के हिसाब से रामायण, बोलते सीता माता ने कैसे ख्वाब में आके बताया था कि मेरे हिसाब से
रामायण से, शकुनी के साइड से, शकुनी के दृष्टि से महाभारत कैसा है, माय गॉड, ये वो पक्का लिख सकता है क्योंकि वो तो शकुनी के ही चेले रहेंगे सब। सो दैट इज व्हाट स्पेक्युलेटिव नॉलेज। एंड नारद मुनि यहाँ पे वही बता रहे कि आपने जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स लोगों को दिए ना, उसकी वजह से इट क्रिएट्स हैवॉक फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। श्रील प्रभुपाद इज writing here that Srila Vyasadeva should not have compiled any Puranas other than Srimad Bhagavatam because a slight deviation from that may create a havoc for self-realization. Ideally, he should not have created, but it has to get created. Okay? बिकॉज हर एक व्यक्ति, इवन देखिए भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में आने के बावजूद भी हर एक व्यक्ति सेम पेज पे रहता है क्या? हर एक का अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, वैष्णव एटिकेट सेम लेवल पे रहते हैं क्या? नहीं। 20 साल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद भी वो व्यक्ति भगवत गीता नहीं समझ पाएगा। भगवान ने बोला है ना भगवत गीता में, सच्चा दोस्त केवल भाग्य से मिलता है। भगवत गीता खोल के देख रहा हूँ 700 श्लोक में, कहाँ पे लिखा है भगवान ने भगवत गीता में कि सच्चा भक्त, सच्चा दोस्त केवल भाग्य से मिलता है करे? कृष्ण बोलते मैं सच्चा मित्र हूँ, सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सच्चा दोस्त भाग्य कैसे मिलता है? किधर लिखा है? एंड इज चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र सिंस 20 years करके। तो पीपल आर वेरी स्पेक्युलेटिव, इसलिए ट्रेनिंग इज वेरी मच नेसेसरी इन आवर लाइफ। Every aspect we should take training, we should listen, we should learn from the devotees, we should try to understand. रीडिंग श्रीमद् भागवतम ऐसे करते हुए श्रीमद् भागवतम भगवद गीता रीडिंग, प्रभु जी मैंने 8 बार पढ़ी भगवद गीता, बताओ तो पहला श्लोक क्या है? वो नहीं पता, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है केवल, इतना ही पता है मुझे। सो नो, रीडिंग ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स मीन्स उनको पठन करो, पठन करने के बाद उनको समझो, और समझने के बाद उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, उसके हिसाब से अपना जीवन ढलने की कोशिश करना। मतलब श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का अंडरस्टैंडिंग अपने जीवन में आए। कितने सारे भक्त हैं क्योंकि जीवन में कभी पुस्तक हाथ में नहीं लिया तो फिलॉसफी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको पूछो भगवान कौन है, सब भगवान है, रामचंद्र भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, हरि नाम में भी राम आते हैं ना, तो राम की पूजा करो तो भी गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। जय राम जी की। सो पीपल हैव लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस बिकॉज दे डोंट रीड। इफ यू डोंट रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द स्क्रिप्चर्स, यू विल ओनली रिमेन सेंटिमेंटल। और फिर क्या होगा? किसी भक्त ने मुझे बोल दिया, उस भक्त ने मुझे बोल दिया, प्रभु जी ने मुझे भाव नहीं दिया, माता जी ने मुझे भाव नहीं दिया, मुझे ये सेवा नहीं दी, वो सेवा नहीं दी, ऐसा ही किया, मेरे साथ ऐसा ही होता है। देयर इज अ पॉलिटिक्स इन टेम्पल। अरे क्या 4 लोग आते हैं मंदिर में और पॉलिटिक्स खेलेंगे करके, है ना? सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स, व्हेन आवर माइंड इज नॉट स्टेबल, हमारा माइंड बहुत एजिटेटेड रहता है, एंड वी डोंट हैव दैट। वो सालों के साथ ईयर्स जैसे जाते हैं ना, वी डोंट हैव टू गो थ्रू द ईयर्स, वी हैव टू ग्रो थ्रू द ईयर्स। एंड इफ यू डोंट ग्रो थ्रू द ईयर्स ना, प्रॉब्लम क्या होगा? इमेच्योरिटी हृदय के अंदर भरी रहेगी, एंड उस इमेच्योरिटी की वजह से क्या होगा? सेंटिमेंटल एटीट्यूड और वो भावनाएं इतनी ऊपर आएंगी कि नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा होते हैं, और फिर मैं भी रुष्ट, वो भी रुष्ट, पूरा कम्युनिटी रुष्ट, भगवान भी रुष्ट। तो ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए विशेषता हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हर एक टाइम हम अपने आप को मैच्योर बनाए डिवोशनल सर्विस में। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, डिवोटीज के बीच में मतभेद होगा, डिवोटीज के बीच में एक दूसरे को सपोज स्वभाव भी नहीं जम सकते, बिकॉज मेरे अनर्थाज आपके अनर्थाज क्लैश भी हो सकते हैं, संस्कार अलग अलग है, बैकग्राउंड्स अलग अलग है, कल्चरल चीज़ें अलग है। परंतु when that maturity is there to understand the devotees, to accommodate devotees, and that broad heartedness is there,
then naturally we will be also happy, the सामने वाला devotee will be also happy, and the community will remain like in a family. Otherwise it will be very difficult. खुद के लिए ही difficult बन जाएगा मंदिर में आके जप करना और फेस्टिवल्स अटेंड करना, संडे फीस्ट अटेंड करना, श्रीमद् भागवतम अटेंड करना. It will be very difficult. So read Srila Prabhupada's books, try to understand them very nicely, try to understand the philosophy. और जैसे जैसे उसको समझते जाएंगे वैसे वैसे मैच्योरिटी हमारे डिवोशनल सर्विस में आते जाएगी. अन्यथा जस्ट 2026 गया, 2036 भी जाएगा, 2046 भी जाएगा, 2056 भी जाएगा. अब तक 56 आ गया परंतु जीवन में बदलाव नहीं हुआ. वो इमैच्योर एटीट्यूड वैसे ही अपने जीवन में रहेगा. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे.